Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our fourth lecture. And today we will talk about relationships of pixels. But before going into that, we have to summarize a previous lecture so that we can build upon it. So in the last few lectures we have discussed what is sampling. So if you remember, we already know that sampling is instead of taking all the signals into digitized form, what we do, we take some portion of samples. It means like we have to fix some intervals, that how much time, after how much time we have to take the sample. And this in two-dimensional situation, then we have to go for a XY location somewhere in the image and then take sample from that location. And then we also study what is quantization. So once we are taking a sample, so we define the locations, how many locations that we will move to. And then after that, once we are taking the sample, the size of that set of sample is also need to be fixed. So for that we also take some bytes, that how many bits we should take for one value or one sample. So if it is a RGB, then it's different, or if it is a black and white, then it's different for that situation. So normally what we do, we take 8 bits for quantization of every sample value. This is in normal situation, but we can take different bits. It depends on how much detail do we need in the image, how much representation do we need. So if it's a black and white image, then the set of values for black and white values will be 16, because 8 will be for black and 8 will be for the white color. If it's a color image, then in that case 3 different planes, we take 3 different sets of values, RGB, so that is red plane, green plane and blue plane, because we know that if we combine these 3 different combinations of 3 colors, we can define different other colors. And the mixture of, then if we produce a 4th color, then if we mix it, then we can have another color. So this means that these 3 basic colors can represent all the colors that we want to mention in the image. So in situation of RGB, then it will become 24. So for a color image, normally we have 24 bits for every sample, which can be called as a pixel. So now we come to the next point, which when we are taking the samples and we also quantize it, so what we call this location and the values of this set of values, we call it as a pixel. So an image is represented in a form of matrix or a two-dimensional matrix, which is digital image, and each of the matrix element is now called a pixel. So अब ये हमारे पास एक definition आ गई कि जब हम sampling कर लें और quantization कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये एक पिक्सल वैल्यू है. तो पिक्सल की कोई लोकेशन होगी और उसके सेट के कुछ वैल्यूज़ होंगे, एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ होंगे. तो वो भी हमने देखा कि हम उसको फिक्स कर सकते हैं, और उसमें जो इश्यूज आ रहे थे हमने उनको सॉल्व किया था मैथमेटिकली. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि हम इस पिक्सल्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं और उससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. बाय रिप्रेजेंटिंग द इमेज इन मैट्रिक्स विद डिफरेंट पॉइंट कॉल्ड पिक्सल, देयर आर सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज पिक्सल्स. अब हमें तो पता चल गया कि हम एक इमेज को पिक्सल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके आपस में बहुत सारे कुछ रिलेशंस बन जाते हैं. मसलन वो किसी नाइबरहुड में होगा, वो जो एक पर्टिकुलर पिक्सल है उसके नाइबर्स होंगे, उन नाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे. फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि एक पिक्सल जो है दूसरे पिक्सल से किस तरह कनेक्टेड है, और अगर कनेक्ट है
और कुछ आपस में एक रीजन बन रहा है, तो उस रीजन को हम क्या नाम देंगे, हम उसके लिए कुछ लेबलिंग करेंगे। और वो लेबलिंग हम किस तरह करेंगे, उसके लिए क्या एल्गोरिथम्स हैं, तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ अदर डिफरेंट adjacency and other type of relationships we will also study today, and how to measure the distance and different image operations that what we need, the basic operations that we can perform on the image. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि हम किस तरह डिफाइन करते हैं पिक्सल के नाइबरहुड्स को। An image is represented as a function f, x और y। तो हमें ये पता है कि हम एक इमेज को एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, f, x of y। Each element f, x, y at location of x and y in the 2D matrix is called a pixel। So अब ये बेसिस तो हमने बना लिया कि हर जो x और y की लोकेशन है या उसकी जो वैल्यूज़ है, हम उसको पिक्सल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको एक नाम देते हैं जिसको पिक्सल हम कहते हैं। सो द लोकेशन इज सैम्पलिंग एंड द वैल्यूज़ आर क्वांटाइज। अब जो लोकेशन है, हम उसके लिए हमने कहा कि ये वो लोकेशन की सैम्पलिंग हम कर लेते हैं, और वैल्यूज़ जो हैं, उस सेट ऑफ वैल्यूज़ हम उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। As its matrix, so there will be some pixel around one x y location। अब क्योंकि हम 2D इमेज में होते हैं, तो वो एक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो अब वो मैट्रिक्स जो आ जाएगा, तो उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप भी होंगे और उनके कुछ नाइबर्स होंगे। So what we do, we consider pixel at location, pixel p at location x, y। हम पिक्सल को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लोकेशन है कोई x और y की लोकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो p की लोकेशन है, और ये p वो पिक्सल है, और उसकी कोई x और y वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। मैट्रिक्स विल हैव अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये हमें पता है कि मैट्रिक्स के रोज होंगे कुछ, और उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। रोज विच इज़ जस्ट बिफोर x, दैट इज अ रो x माइनस 1। अब अगर जिस x से पहले जो होगा, तो जिस रो में हम होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि ये x माइनस 1 है, और जो रो उसके बाद वाला होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये x प्लस 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 और x प्लस 1, अगर हम रो वाइज देखें, ये हमारे पास एक रो आ गई, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो, ठीक है। तो x माइनस 1 होगा, क्योंकि हम इस x के साथ लोकेशन चेक कर रहे हैं। तो इस x से अगर हम एक बैक पे ऊपर जाते हैं, तो वो x माइनस 1 उसकी पोजीशन होगी, और अगर x प्लस करते हैं, तो नेक्स्ट रो में हम जाएंगे, तो x प्लस उसकी दूसरी लोकेशन हो जाएगी। सेम इसी तरह देयर विल बी अ कॉलम जस्ट बिफोर द कॉलम y, दैट इज कॉलम y माइनस 1। अब अगर हम कॉलम्स को देखें, तो ये हमारे पास उसके कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये कॉलम जो y के साथ हम रिलेट करेंगे, तो उस y के लिए हम y माइनस 1 लेंगे। और अगर हम इस y के साथ रिलेट करें और इसका नाइबर चेक करना चाहें, तो हम y प्लस 1 में जाएंगे। 2 पिक्सल आर वर्टिकल नाइबर्स ऑफ पॉइंट p बाय x एक्सिस। अब हम अगर इसके नाइबर्स देखना चाहें, तो x एक्सिस पे वर्टिकल 2 नाइबर्स उसके हो गए, ठीक है। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो हैं, उसके y एक्सिस पे 2 हमारे पास उसके नाइबर्स आ गए। Now particular pixel p does not have any pixel in the row above this pixel। so अगर हम सॉरी स्लाइड को दोबारा लेते हैं। अब हमारे पास हम इन नाइबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी एन क्या है? n वो नाइबर्स हैं, और हम क्योंकि हमारे पास 4 है, 4 नाइबर्स आ रहे हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ PN4, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके 4 नाइबर्स आ गए हैं
किसी भी एक पिक्सल के। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, अगर तो हम किसी बिल्कुल एंड पे हैं किसी इमेज के, तो जाहिर है उसके वो पर्टिकुलर पिक्सल्स नहीं होंगे, उसके नाइबर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक इमेज लेते हैं और उसमें हमारे पास कुछ रोज और कुछ कॉलम्स हैं, क्योंकि हम उसको सैम्पलिंग कर लेते हैं तो वो हमारे पास एक ग्रिड की फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर हम किसी एक एंड पे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये पिक्सल है, तो इसके जो अबव यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं है, और इधर जो नाइबर्स हैं वो भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके ये वाले नाइबर्स आ रहे हैं। तो ये दो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जो इसके अबव हैं वो नहीं आ रहे। तो ये क्या हो सकता है कि अगर हम किसी एक एज पे हैं, तो उस एज के लिए हमारे पास, या बाउंड्री पे हैं इमेज के, तो उस बाउंड्री में हमारे पास P4 नहीं आएगा। मतलब ये कि वो P4 से कम होंगे उसकी वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि अगर तो सेम हमारे पास लोकेशन है P की, तो उसके कुछ और नाइबर्स भी आ रहे हैं। और नाइबर्स क्या आ सकते हैं? डायगनली। अगर हम इस पिक्सल के डायगनली देखें तो हमारे पास उसके और भी नाइबर्स हैं, और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देयर आर 4 डायगनल पॉइंट्स एट लोकेशन x मस्ट -1 माइनस और y -1। अगर हम x -1 पे जाएं और y -1 पे जाएं तो ये हमारे पास उसके डायगनल आ जाएंगे। अगर हम x -1 और x +1 में जाएं तो हमारे जो राइट साइड पे अप पे डायगनल आ रहा है तो वो आ जाएगा। और फिर जो x +1 और y -1, तो हमारे जो बॉटम लेफ्ट पे आ रहा है पिक्सल, तो वो उसका डायगनल बन जाएगा। और सेम इसी तरह x +1 और y +1 अगर लेते हैं तो वो जो राइट पे बॉटम पे हमारे पास जो पिक्सल आ रहा है तो वो उसका नाइबर बन जाएगा। अब अगर हम इन नाइबरहुड जो डायगनल में आ रहे हैं, अगर इनको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये n नाइबर्स और डायगनली P के, तो जो P हमारे पास पिक्सल है इसके डायगनल जो भी नाइबर्स हैं हम उसको काउंट करते हैं, और वो भी हमारे पास नॉर्मली P ही है, क्योंकि 4 ही है। उसकी वजह ये है कि हम ग्रिड में हैं और ग्रिड की सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ 4 ही डायगनल आ सकते हैं अगर हम सिर्फ एक पिक्सल को काउंट करें। अब अगर हम टोटल देखना चाहें तो टोटल हमारे पास नाइबर्स क्या आ सकते हैं? 8 नाइबर्स आ सकते हैं। किस तरह? एक N4P एंड NDP। तो 4P हमारे पास वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं हम उनको ले लेते हैं, और जो डायगोनल हैं उनको ले लेते हैं। दे टुगेदर आर कॉल्ड 8 नाइबर्स ऑफ पॉइंट P। अब हम इनको 8 नाइबर्स ऑफ पॉइंट P से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट बाय N8 सॉरी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? N8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द पॉइंट बिलोंग टू N8P और द नंबर ऑफ 8 नाइबर्स ऑफ द पॉइंट P विल बी 8 इफ P इज इनसाइड एन इमेज। अगर तो हमारे पास ये नाइबर जो हैं, अगर तो कोई P आ रहा है, जो P हम ले रहे हैं, अगर तो वो बिल्कुल मिड में है कहीं पर, जिस तरह हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो अगर तो ये मिड में आ रहा है तो उसके नाइबर्स तो 8 आ जाएंगे। लेकिन अगर तो वो जो हमने पिछले स्लाइड में देखा यहाँ पर, अगर तो वो कहीं पर एंड पे है, एज पे है, तो उस सिचुएशन में वो 8 नहीं होंगे, क्योंकि 8 से हमेशा कम रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ जो नाइबर्स हैं वो मिसिंग रहेंगे। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऑब्वियसली क्या होगा, वो ये N8P क्या होंगे? N4P और यूनियन ऑफ NDP। सो अब ये हमें तो पता चल गया कि ये अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो हमारे पास उसके टोटल नाइबर्स आ जाते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, तो उसके लिए हमें उसकी कनेक्टिविटी देखनी होगी कि क्या वो आपस में कनेक्ट हैं कि नहीं।
हाउ द पिक्सल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो वो हमें इसकी थोड़ी सी डिटेल देखनी होगी, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इन ब्रॉड टर्म उसको हम सेगमेंटेशन कह सकते हैं। हम इसके और डिटेल में जाएंगे फर्दर जब हम कोर्स को एलाबोरेट करेंगे, लेकिन बेसिक जो आइडिया है वो यहाँ पर ये है कि हम उसकी बाउंड्रीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर लें। सो इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, डिफाइन इमेज कंपोनेंट एंड रीजन्स। और हम उसके बाद क्या करते हैं, इमेज के कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और उसके रीजन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रीजन में क्या है। If the intensity value, or if xy at a particular point xy is greater than certain threshold th, the point xy belongs to the object. अब हम क्या करते हैं कि किसी लोकेशन पे हैं f जो फंक्शन हमारा है xy का, तो अगर तो वो ग्रेटर है किसी एक थ्रेशहोल्ड से, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। Where if the point or the intensity level at the point xy is less than the threshold, then the point xy belongs to the background. और अगर तो हमारे पास xy एक थ्रेशहोल्ड से लेस है, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है हमारे पास। तो वी रिप्रेजेंट एवरी ऑब्जेक्ट पॉइंट एज अ वाइट पिक्सल और assign a value 1 to it, and every background pixel as a ब्लैक पिक्सल और assign a value 0। अब अगर हमारे पास ये इमेज है तो ये ओरिजिनल इमेज है, हम यहाँ से इसको रीड करना शुरू करते हैं, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखें कि हम फॉर एग्जांपल हर f(x,y) को रीड करते जा रहे हैं, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि वो एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है जो हमने सेट कर ली, तो अगर उस थ्रेशहोल्ड वैल्यू से बढ़ गया है नंबर, तो हम उसको 1 कर देते हैं, और अगर उससे कम आ रहा है तो हम उसको 0 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम उसको 2 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो ग्रे स्केल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको ब्लैक एंड वाइट में कर दिया, तो अब बहुत इजीली डिस्टिंग्विश हो रहा है। डू द पिक्सल बिलोंग टू वन ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, तो ये हमने रीड करते करते हम पहुंचे, और ये हमने एक 2 ऑब्जेक्ट्स जो हमने इसको कलर दे दिया वाइट, इसको दे दिया, और ये जो बैकग्राउंड है इसको हमने दूसरा कलर दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको जब आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम ब्लैक और वाइट में इसको कर देंगे, तो ये ब्लैक ये वाइट आ जाएंगे दोनों, और ये बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लैक है। तो क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये आपस में रिलेट करते हैं कि नहीं, या ये दोनों डिफरेंट है? क्योंकि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे इमेज के ऊपर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में मिल रहे हैं, ये इनकी आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये इनका आपस में कोई ताल्लुक है कि नहीं। तो इन चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम इसको करेंगे, तो अगर हम इसके सिर्फ कलर की बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो वो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहें कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा राउंड है, तो वो भी हमें पता नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि जब हम इसको रीड करेंगे तो दोनों हमारे पास वाइट आते जा रहे होंगे, जब हम इसको पिक्सल बाय पिक्सल हम इसको रीड करेंगे। तो इस वजह से हम हमारे पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है। तो इसका जवाब किस तरह आएगा? वो इस तरह आएगा कि अगर हमारे पास यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो अगर आपस में ग्रुप बना रहे हैं एक, ठीक है, और जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनका आपस में ग्रुप बन रहा है, तो हम इसको कोई ख़ास नाम दे दें। तो अगर हम नाम दे देंगे तो उससे क्या होगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कनेक्टिविटी के प्रॉपर्टीज़ देखनी है। पिक्सल आर कनेक्टेड इफ़ दे आर एडजेसेंट टू सम सेंस। अब वो किस तरह आपस में यहाँ पर कनेक्ट होंगे, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये आपस में कनेक्टेड है?
तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हमने एडजेसेंट देखना है कि क्या वो एडजेसेंट हैं कि नहीं। एडजेसेंट मीन दैट दे हैव टू बी नाइबर्स। अब एडजेसेंट के लिए हमारे पास दो डिफिनेशन हैं या दो पॉइंट्स हैं जिसको हमने क्लियर करना है। पहला क्या है कि वो नाइबर्स होने चाहिए। इफ टू पिक्सल P and Q are connected, then by adjacency we mean that P must be a neighbor of Q or Q must be a neighbor of P. That means Q has to be belong to N4P or NDP or N8P. तो अगर हमने इसकी नाइबरहुड देखनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पिक्सल आपस में कनेक्टेड होंगे और वो हम उसके एडजेसेंट देखना होगा हमें कि क्या वो एडजेसेंट हैं कि नहीं, आपस में करीब हैं कि नहीं, या आपस में उसका डिस्टेंस कितना है। तो वो उस वक़्त में आपस में एडजेसेंट होंगे जब वो आपस में नाइबर्स हों। तो नाइबर्स के हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ये कि वो N4 हों, या वो ND हों, या वो N8 हों इन द इंटेंसिटी। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट एडजेसेंट चेक करने के लिए कि उनकी इंटेंसिटी वैल्यू भी सेम हो। द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द 2 पॉइंट P and Q मस्ट बी सिमिलर। तो उनकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है, मतलब ये कि अगर वो ग्रे स्केल में है तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर बाइनरी में है तो 1 और 1 होने चाहिए दोनों के, P और Q की वैल्यू, या 0 होने चाहिए। तो इसके लिए हम अगर सिंपली इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाना चाहें तो किस तरह होगा। फॉर अ बाइनरी इमेज B, अगर हम बाइनरी इमेज लेते हैं सिंपली 1 और 0 की फॉर्म में, 2 points P and Q will be connected if Q is a member of NP or P is a member of NQ। अगर तो वो आपस में नाइबर्स हैं, ठीक है, और N हमारे लिए नाइबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड P is equal to BQ, और अगर उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी जो वैल्यू है वो P और Q की जो वैल्यू है वो आपस में सेम हो, इक्विवेलेंट हो। अब हम ग्रे स्केल लेवल में जाते हैं। अगर तो ग्रे स्केल होगा, बाइनरी से हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। इन केस ऑफ ग्रे लेवल इमेज वेयर फॉर एग्जांपल वी टेक 8 लेवल्स ऑफ ब्लैक एंड 8 लेवल्स ऑफ वाइट। अब क्योंकि ग्रे लेवल में सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, हमारे पास वाइट की कुछ इंटेंसिटी है और फिर ब्लैक की कुछ इंटेंसिटी है, ठीक है। Let V be the set of gray levels used to define connectivity for 2 points P, Q is member of V. So V हमारे पास क्या है, वो ग्रे लेवल का सेट है जिससे हमने वो वैल्यूज उठानी है। मतलब ये कि क्वांटाइजेशन की जो वैल्यू है वो V से है, ठीक है, वो V सेट है हमारे पास। Now there are 3 possible types of connectivity. 4 कनेक्टिविटी में क्या होगा, अगर हमारे पास 4 नाइबर्स हैं सिर्फ, तो उसमें क्या होगा, P Q is a member of V and P is a member of N4Q। तो वो क्या होगा, P और Q जो है उनकी वैल्यू V से होगी और क्या होगा, वो आपस में नाइबर्स होंगे, ठीक है। P और Q के आपस में नाइबरहुड होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 8 कनेक्टिविटी में क्या होगा, P Q इज अ सबसेट ऑफ V। तो हम उसका उनमें ये जो वैल्यूज हैं ये इन V से कहीं से हमारे पास इसकी वैल्यूज होंगी। एंड P इज अ मेंबर ऑफ नाइबरहुड 8 ऑफ Q। तो वो इस Q के इन 8 नाइबर्स में से किसी एक में आएगा। और उसके बाद हमारे पास थर्ड कौन सी ऑप्शन आ सकती है, M कनेक्टिविटी, मिक्स कनेक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। तो मिक्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। P Q इज मेंबर ऑफ V और M कनेक्टेड इफ। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि P और Q अगर तो वो V से हैं, वो एक सेट से हैं ग्रे लेवल के, तो वो कनेक्टेड होंगे। 2 कंडीशंस हैं, इफ Q इज अ मेंबर ऑफ N4P, अगर तो वो किसी 4 नाइबर्स में से कोई एक उसका नाइबर रहा है, और Q इज
मेंबर ऑफ एन डी, और या वो किसी जो उसके डायगोनल नाइबर्स हैं उनमें से किसी एक का आ रहा है, एंड N4P is intersected with 4N4Q is equal to pi। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तो Q नाइबर में है, उसके नाइबर्स में आ रहा है और डायगोनल नाइबर में आ रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पास जो हम N4 लेंगे तो वो N4 में से वो किसी N4 में से फिर बिलोंग ना करता हो, क्योंकि वो हमारे पास मल्टीपल पाथ्स जनरेट हो जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट दिस मीन्स, if the point Q belongs to the diagonal neighbor of P and there is a common set of points which have 4 neighbors to both the points P and Q, then M connectivity is not valid। तो हम इसको सिंपली इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। M connectivity or mixed connectivity is to avoid multiple connection path। Mixed connectivity is two path points are M connected if one is 4 neighbor of other or one is 4 neighbor of other at the same time। They do not have any common neighbor। किस तरह होगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास 4 कनेक्टिविटी है और V हमारे पास इज इक्वल टू 1 है। मतलब ये कि जो हम V जो सेट है हमारे पास, हम उसको 1 ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ बाइनरी को चेक कर रहे हैं तो बाइनरी की सिचुएशन में 4 कनेक्टेड किस तरह होंगे कि ये जो नाइबर है ये इसका नाइबर आ रहा है, तो ये हमें पता है कि अगर ये नाइबर होंगे आपस में और वैल्यूज़ उनकी सेम होंगी, 1 और 1 होंगी, तो हम ये कहेंगे कि ये कनेक्टेड है। इसको हम 4 कनेक्टेड कहते हैं। अब अगर हम 8 कनेक्टेड में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका नाइबर 4 नाइबर ये वाला आ रहा है और इसका 4 नाइबर ये आ रहा है, और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका 4th नाइबर ये आ रहा है और साथ में डायगोनल 4th नाइबर ये वाला आ रहा है डी पे, ठीक है, और डायगोनल में ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके साथ हमारे मल्टीपल कनेक्शंस जनरेट हो रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्योंकि इसके साथ हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम 4 में होते हैं तो इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा इन बाकियों के साथ। उसकी वजह यह है कि हम 4 कनेक्शन चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं वैल्यूज़ हम उसको चेक कर रहे हैं, मतलब हम डी वाले चेक नहीं कर रहे। लेकिन जब हम 8 में आ जाते हैं तो 8 में हमारे पास डायगोनल भी हमने चेक करना होता है। अब डायगोनल हम चेक कर रहे हैं तो उससे क्या मसला आ रहा है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ आ रहे हैं। तो अब एम कनेक्टेड क्या करेगा, इस मल्टीपल पाथ्स को रिमूव करेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने ये बताया कि अगर तो वो N4P है और वो मेंबर बन रहा है N4Q का, तो वो M कनेक्टेड नहीं हो सकते। इस वजह से जो हमारे पास ये वाला पाथ है हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है। अब अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं एडजेंसी का, तो उसके लिए क्या होगा, पिक्सल P एंड Q आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड। अब P और Q जो दो पिक्सल हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे तब जब वो एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस थे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, 4 कनेक्टिविटी, 8 कनेक्टिविटी एंड M कनेक्टिविटी। अब अगर हम एडजेसेंट देखना चाहते हैं तो एडजेसेंट के लिए भी फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, 4 एडजेसेंसी, 8 एडजेसेंसी एंड M एडजेंसी। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, एडजेंसी ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट कैन बी एक्सटेंड टू इमेज रीजन्स। अब हम
कोई दो पिक्सेल्स या दो पॉइंट्स का एडजेसेंट चेक कर रहे हैं कि क्या वो एडजेसेंट हैं कि नहीं, तो उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं रीजन्स के ऊपर कि दो रीजन्स, दो एरियाज जो हैं क्या वो आपस में एडजेसेंट हैं कि नहीं. That two image regions may be adjacent or they may not be adjacent. तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या दो regions जो हैं वो adjacent हैं या नहीं. What is the condition for adjacency of two image regions? उसके लिए हम क्या conditions लगा सकते हैं या क्या चेक कर सकते हैं, वो क्या है. Two image subset Si and Sj are adjacent if P belongs to Si and Q belongs to Sj such that P and Q are adjacent. तो हम ये जो रीजन है S उसको हम adjacent तब कहेंगे जब कोई दो पॉइंट्स P और Q जो है वो बिलोंग करें इन दो Si और Sj के साथ. वो कैसे हो सकता है, हम एक छोटी सी उसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज है और इसमें हमारे पास एक Si है रीजन और दूसरा हो गया Sj. अब ये जो दो रीजन्स हैं ये आपस में एडजेसेंट हैं कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा. हमने एक P पॉइंट लिया और Q पॉइंट लिया. अब अगर ये P और ये Q आपस में एडजेसेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि Si और Sj जो हैं ये भी आपस में एडजेसेंट हैं. तो बेसिक सा रूल है, हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उनकी एडजेसेंसी चेक करते हैं, या हम मल्टीपल पॉइंट्स लेकर उनको आपस में उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या वो आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं. अब अगर तो वो एडजेसेंट हैं तो जाहिर है हमें उसके लिए कोई पाथ चाहिए होगा कि हम उसको कैसे चेक करेंगे. हम आपस में अगर दो रीजन्स को कंपेयर करना है हमने कि क्या वो आपस में एडजेसेंट हैं कि नहीं, तो उनके लिए आपस में कोई पाथ होना चाहिए. हम वो जो रास्ता जो जिसके थ्रू हम करेंगे उसको हम डिफाइन करते हैं. सो पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स बिटवीन P एंड Q सच दैट ऑल द पॉइंट्स विच आर ट्रैवर्स इन बिटवीन P एंड Q. अब वो P और Q के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम उस पर कंटिन्यूसली जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक पाथ बन रहा है. ऑल दो सब्सिक्वेंट पॉइंट दे आर एडजेसेंट, और वो जो सब्सिक्वेंट पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो आपस में एडजेसेंट होने चाहिए. देन अ पाथ एग्जिस्ट, तो हम इसको कहते हैं कि ये अब एक पाथ P और Q के दरमियान अवेलेबल है हमारे पास. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द लेंथ ऑफ द पाथ टू बी n, और हम उसके लिए जो लेंथ है उसको n से डिफाइन कर सकते हैं. किस तरह, अ पाथ फ्रॉम Px टू QST इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस पिक्सल. वो आपस में P जो पॉइंट है और Q जो पॉइंट है उसके जो X और Y और S और T जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सब्सिक्वेंट होने चाहिए. कैसे, X0 Y0 X1 Y1 until Xn Yn, where X0 Y0 is equal to X1 of XY and XY लोकेशन. ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं X और Y की, वो XY से होनी चाहिए, जो लोकेशन है उसकी XY लोकेशन, और XN और YN जो है वो ST से होने चाहिए. मतलब ये कि जहाँ से एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो दूसरा Q के जो ST वैल्यूज़ हैं तो वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं XN और YN तक, और स्टार्ट कहाँ से हो सकते हैं X0 और Y0 से, जो के लोकेशन ऑफ P है. ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर आ गया P, X और Y उसकी वैल्यूज़ हैं, तो जाहिर है ये हमारे पास उसकी 0 आ जाएंगी. और अगर हमारे पास Q वैल्यू है और उसके S और
t है, तो ये जो x इसकी लोकेशन होगी वो कोई भी n वैल्यू हो सकती है, और y की भी कोई n वैल्यू हो सकती है, मतलब ये कि ये इससे बिलोंग करते हैं। तो फॉर 1 इज लेस देन n इक्वल टू i एंड i इज लेस देन n इक्वल टू n, और उसकी n को हम डिफाइन करते हैं उसके लेंथ से। अब हमें जब ये n का पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 0 से n कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हमें उसके लेंथ का पता चल जाएगा। मसलन अगर 10 है तो हमें ये पता है कि 10 पिक्सल्स की एडजेसेंसी है, मतलब ये आपस में इतने एडजेसेंट हैं कि 10 पिक्सल्स आपस में सिर्फ इसको चेक करने हैं, मतलब इनके आपस में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 7-10 पिक्सल्स हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, रीजन्स को चेक करते हैं कि क्या वो रीजन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। वी डिफाइन दैट two pixels are connected if they are adjacent in some sense, that is they are neighbors and their intensity values are also similar. We have also defined two regions to adjacent if there is a point in one region which is adjacent to some other point in other region. We have defined a path between a point P and Q if there are set of points in between which are adjacent to each other. तो हमने ये तीनों काम कर लिए, हमने पिक्सेल्स के नाइबर चेक किए, फिर हमने ये देखा कि क्या वो एडजेसेंट आपस में हैं कि नहीं, उसके लिए हमने कनेक्टिविटी देखी, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम एडजेसेंट पाथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। नाउ दिस कंसेप्ट कैन बी कॉल्ड एज कनेक्टेड कंपोनेंट। अब हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, आपस में दो कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो दो कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, वी टेक अ सबसेट S ऑफ एन इमेज I। हम क्या करते हैं कि एक सबसेट लेते हैं इमेज ऑफ I का। वी टेक 2 पॉइंट P एंड Q विच बिलोंग टू दिस सबसेट S ऑफ इमेज I, देन P इज कनेक्टेड टू Q in S, which means if there exists a path from P to Q consisting earlier of pixels in S, for any such P belongs to S, the set of pixels in S that are connected to P is called connected component of S. तो वो हम ये कहेंगे कि ये वो आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं क्योंकि वो एक कंपोनेंट से बिलोंग कर रहे हैं। सो ये किस तरह है, देन अगर हमने S लिया है जो कि एक सबसेट है I का उस इमेज का, तो P और Q उसके दो पॉइंट्स हो गए जो कि S से बिलोंग करते हैं। देन P इज कनेक्टेड टू Q इन S इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम P टू Q कंसिस्टिंग entirely of pixel in S. For any P which is member of S, the set of pixel in S that are connected to P is called connected component of S. Any two pixels of connected component are connected to each other. Distant connected components are adjacent. अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक रीजन है, कोई एक इमेज है, और उसमें हम ये इमेज इस तरह करते हैं कि इसके अंदर हम कोई P वैल्यू लेते हैं और कोई Q वैल्यू लेते हैं। अब ये हमारे पास एडजेसेंट हमने ये चेक करना है कि क्या ये एक कंपोनेंट की वैल्यूज़ हैं आपस में या नहीं। तो वो अगर हमारे पास एक P है और Q है और उनके यहाँ पर जो पॉइंट है और जो यहाँ पर पॉइंट है, इनके दरमियान में कुछ ऐसे पिक्सेल्स हैं जो कि आपस में उसकी इंटेंसिटी वैल्यू, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो आपस में है। तो वो कनेक्टिविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि हम कैसे चेक करते हैं। तो अगर तो वो कनेक्टेड हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक कंपोनेंट है। अगर सेम इसी तरह इस P के और भी बहुत सारे वैल्यूज़ पॉइंट्स के साथ कनेक्टिविटी है तो हम ये कहेंगे कि ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, सो कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ये आपस में एक कंपोनेंट बना रहे हैं और इसको हम S कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो S जो सबसेट था इमेज का,
हम इसको तो इसकी कनेक्टिविटी तो देख सकते हैं, लेकिन क्या हम ये देख सकते हैं कि ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, दो कंपोनेंट्स का। तो एक्सट्रैक्टिंग द रीजन प्रॉपर्टीज वी नीड टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ये एक कंपोनेंट है। अगर हमारे पास मल्टीपल और भी कंपोनेंट्स हैं जिस तरह इस इमेज में है, तो क्या उनका आपस में कोई डिफरेंस है या नहीं। फॉर द डिफिनीशन और For the identification or grouping identification, we need to identify a set of pixels which are connected belonging to a particular group, assign a particular identification number. अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि अगर तो कुछ पिक्सेल्स या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपस में एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो क्या वो दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंट हैं। तो अगर तो डिफरेंट हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमने सबको 1 और 0 में कर दिया तो हम कैसे पता चलाएंगे कि क्या ये एक कंपोनेंट है और या दूसरा कंपोनेंट है, और उनकी रिकग्निशन हम कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो रीजन हम बनाते हैं, जो ग्रुप्स या कंपोनेंट्स बनाते हैं, हमें चाहिए कि उनको हम कोई डिस्टिंग्विश नाम दे दें, उसको कोई नंबर दे दें। अब अगर उनको हम नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल उसको हम कलर की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर लें कि एक जो है येलो है और एक लाइट येलो और ऑरेंज है, और इस तरह का डिफरेंट कलर्स में कर दें या उसको कोई नंबर दे दें, तो हम उसको कहेंगे कि ये हम कंपोनेंट लेबलिंग कर रहे हैं। वंस वी आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन, देन वी कैन गो फॉर फाइंडिंग आउट सम रीजन प्रॉपर्टीज। अब अगर हमने उसकी लेबलिंग कर दी, हमने उसको नंबर दे दिए, असाइन कर दिए, तो हम उसके फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, उसकी शेप की प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकते हैं, उसका एरिया चेक कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेक कर सकते हैं, उसकी लेंथ देख सकते हैं कि जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है वो क्या है, और बहुत सारे अदर ऑपरेशंस हैं, हम वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब हमें ये पता चले कि जो इमेज के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, और हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हम उसको नंबर असाइन कर दें। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कोई एल्गोरिथम चाहिए होगा, और वो एल्गोरिथम क्या करता है, वो सिंपली पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यूज रीड करता है। स्कैन एन इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम क्या करेंगे कि हमें इनको स्कैन करना होगा। अगर हमारे पास ये एक इमेज आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें डिफरेंट किस्म के रोज हैं और कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम पिक्सल बाय पिक्सल एक साइड से स्टार्ट करते हैं, और हम इस तरह आगे चलते जाएंगे, और फिर दूसरे जब एंड पे पहुंच जाएंगे तो हम दूसरे रो में आ जाएंगे, और कॉलम वाइज हम सारा टॉप से बॉटम तक चले जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये P है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, तो अगर हम इस P तक पहुंचेंगे तो जाहिर है जब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे तो ये R पहले रीड होगा, और फिर उसके बाद T भी पहले रीड होगा, और उसके बाद हम P पर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले आ जाएगी R और T की, और Q की बाद में आएगी, P की बाद में आ जाएगी। So the algorithm is called component labeling algorithm to assign an identification number to each of the connected pixel which will identify a particular region. अब हम क्या करेंगे कि इस एल्गोरिथम को एक नाम देते हैं कंपोनेंट लेवल एल्गोरिथम, और इसको हम इस वजह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें रीजन्स का पता चले, और ये पता चले कि हर रीजन का अलग नाम है, अलग लेबल है। अब स्टेप वाइज ये किस तरह काम करता है, अगर हम इमेज लेते हैं, इमेज आए और उसमें कोई P पॉइंट लेते हैं, पिक्सल, ठीक है, पिक्सल वैल्यू एट पोजीशन P की कोई XY की कोई लोकेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, L उसको लेबल करेंगे, लेबल असाइन टू पिक्सल लोकेशन P। तो अगर हम P लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम इसको न्यू लेबल असाइन कर रहे हैं।
वो लेबल कब असाइन होगी? तब इफ़ 1p इज़ इक्वल टू 0 मूव टू नेक्स्ट स्कैनिंग पोजीशन। अगर हम ये देखते हैं, हम अगर सिंपली बाइनरी की सिचुएशन में चेक करना चाहते हैं कि क्या रीजन्स अलग अलग हैं कि नहीं, या कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, तो हमने ये देखा था कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू हम रखते हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पिक्सल है ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको नंबर देंगे। लेकिन नंबर अगर 0 हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हम वो कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको कोई लेबल असाइन करेंगे। तो इफ़ IP इज़ इक्वल टू 1, तो अगर 1 है तो फिर हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि IR इज़ इक्वल टू IT इज़ इक्वल टू 0, और अगर तो हम उसको लेबल हमारे पास 1 आ रहा है P की वैल्यू, और R और T की वैल्यू 0 आ रही है, जब हम यहाँ पर थे R और T की वैल्यू 0 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेबल असाइन करते हैं। देन असाइन अ न्यू लेबल टू पोजीशन P। इफ P इज इक्वल टू 1 एंड ओनली वन ऑफ द टू नाइबर्स इज 1। अब इस सिचुएशन में हम कब असाइन करते हैं लेबल? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, उसमें एक ये है कि 1 असाइन करते हैं अगर तो 2 ऑफ एनी नाइबर इज 1। अगर इन दो नाइबर्स में से R और P में से कोई एक 1 है तो हम P को 1 असाइन कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो हम इसको भी 1 कर देंगे, या दूसरी साइड पे भी। देन असाइन इट्स लेबल टू P, और अगर तो वो नहीं है तो हम क्या करते हैं, और वो लेबल जो असाइन करते हैं P को, वो वाला लेबल असाइन कर देते हैं। इफ़ 1P इज इक्वल टू 1 एंड बोथ R एंड T आर 1, देन अब अगर हम लेवल P पे पहुंचते हैं और हमारे पास 1 आ रहा है और सेम हमारे पास R और T की वैल्यू भी 1 है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लेबल असाइन करेंगे R इज इक्वल टू LT, देन LP इज इक्वल टू LR। तो हम R और T अगर सेम है तो हम क्या करते हैं कि जो P है उसको हम कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो हम फॉर एग्जांपल R की वैल्यू असाइन कर देते हैं अगर दोनों 1 है तो, ठीक है। इफ LR इज नॉट इक्वल टू LT, देन असाइन वन ऑफ द लेबल टू P एंड मार्क एज नोट दैट द टू लेबल्स आर इक्विवेलेंट। और हम उसके बाद क्या करते हैं, अगर LR जो लेबल है उसका R का, वो LT के इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, लेकिन जब इक्वल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम असाइन कर देते हैं कोई एक वैल्यू R की या T की P को असाइन कर देते हैं, और साथ में हम एक नोट लगा लेते हैं कि ये जो दो थे इनमें से ये कोई इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हम आगे एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रीजन है, दो रीजन्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स हैं, और हम इसको रीड करना चाह रहे हैं कि क्या ये आपस में रीजन कनेक्टेड हैं, और कंपोनेंट्स को लेबल असाइन करना चाह रहे हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकें, शेप की और लेंथ की, और जो सारी हमने डिस्कस की हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ज़ाहिर है हमें पिक्सल बाय पिक्सल जाना होगा 1 बाय 1, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर होंगे तो हम आए यहाँ पर, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, इफ़ 1 एंड R एंड T आर 0 देन असाइन लेबल, न्यू लेबल, ठीक है। हमने जो यहाँ पर देखा था कि अगर R और T जो है वो 0 हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 1 असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस सिचुएशन में 1 असाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आए तो 0 कुछ भी नहीं किया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ जो इसके R और T की वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, तो हमने न्यू लेबल असाइन कर दिया। अब हमें ये तो पता है कि ये नीचे हमारे पास कनेक्टेड आ रहे हैं, लेकिन वो जब हम इस स्टेप पे पहुँचेंगे तो समझ आ जाएगी कि इसको हम कैसे
जो हमारे पास दूसरा उसका ऑप्शन था, हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। अब इस एल्गोरिथम का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पर ये नोट जो लगाया था, अब हमने इसको चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द स्कैन ऑल पिक्सल विद वैल्यूज 1 आर लेबल। हमने सब को लेबल 1 के साथ लेबल कर दिया। सम लेबल्स आर इक्विवेलेंट। अब कुछ जो लेवल्स होंगे वो हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, ड्यूरिंग द सेकंड पास प्रोसेस equivalent pairs for the same class are given the same label. Assigning a different label to each class in the second pass through the image replace each label by the label assigned to its equivalent class. अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड राउंड में जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पर जो सेम क्लास से बिलोंग करते होंगे तो हम उनको एक लेबल असाइन कर देंगे। और इसका आसान हल ये है कि हम अगर छोटी सी एग्जांपल उसकी देखें तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी कि एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहा है। हम इस एग्जांपल को लेते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो रीजन्स हैं। अब हम इनको कैसे लेबल असाइन करेंगे ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें आपस में से और फिर उनकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकें, उसकी शेप की, उसकी बाउंड्री की और बहुत सारी। अब हमने एल्गोरिथम में ये देखा कि हम पिक्सल बाय पिक्सल स्टार्ट करते हैं टॉप से और फिर हम नीचे आते जाएंगे और हम उसको लेबल असाइन करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट में बिल्कुल हमने देखा कि अगर हम वैल्यूज़ देखते हैं यहाँ पर आर और टी की, तो अगर वो ज़ीरो हैं तो हम पिक्सल को जो p है उसको 1 असाइन कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 हैं तो हम p को 1 असाइन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं यहाँ से। जब हम इन पोजीशंस पे पहुँचे तो हमें पता चला कि वो 0 हैं, इस वजह से हम इसको लेबल असाइन नहीं कर रहे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या होगा, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इस में हमारे पास r और t की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, इस वजह से हम इसको न्यू लेबल असाइन कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पर एल्गोरिथम में देखा था कि अगर तो r और t की वैल्यू 0 हैं तो हम न्यू लेबल असाइन करेंगे। तो न्यू लेवल हमने लेबल असाइन कर दिया तो वो हमने 2 दे दिया। हमें ये पता है कि ये आपस में कनेक्ट है लेकिन हमें विजुअली नज़र आ रहा है, तो हम आगे देखते हैं कि एल्गोरिथम इसको कैसे सॉल्व करता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। तो जब हम नेक्स्ट रो में गए तो r और t की वैल्यू हमने चेक की। अगर r और t में से कोई एक जो है वो 1 है तो हम उसको 1 असाइन कर देते हैं। जो यहाँ पर हमने एल्गोरिथम में देखा था कि हम दोनों की नाइबर्स चेक करते हैं, अगर उन दोनों में से कोई एक 1 है तो हम उसको असाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहुँचे तो हमने उसको 1 असाइन कर दिया। सेम हम जब यहाँ से आगे गए तो 0 0 और जब इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमने इसको 2 इस वजह से असाइन किया कि इसका जो नाइबर है उसकी वैल्यू 2 है, तो हमने इस वजह से इसको भी लेबल 2 असाइन कर दिया। अब हम आगे चलते गए। जब हम आगे गए तो हमें पता चला कि ये r और t की वैल्यू 0 है, तो हम इसको नई वैल्यू नई लेबल से असाइन कर देते हैं और उसको हमने 3 दे दिया। सेम इसी तरह हमने इसको 3 दे दिया क्योंकि इसका जो एडजेसेंट नाइबर है वो 3 है, तो हमने इसको भी 3 कर दिया। सेम इसी तरह हम आगे चलते गए। जब हमने देखा कि हम इस लेवल पे आ गए तो यहाँ पर क्योंकि इसका जो नाइबर है वो 1 है, तो इस वजह से हमने इसको भी 1 असाइन कर दिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू t की आ रही है वो 1 है, इस वजह से हमने इसको भी 1 कर दिया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सेम इसी तरह 1 कर दिया क्योंकि t की जो वैल्यू है वो 1 है। और एल्गोरिथम में हमने देखा था कि अगर r और t की कोई एक वैल्यू होगी 1 होगी तो हम वही वाला लेबल इसको असाइन करते हैं जो उस क्लास का होगा, उस r और t की कोई वैल्यू हो। सेम जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम 1 दे देते हैं। अब अगर हम देखें तो 2 की वैल्यू जो इसका r की वैल्यू है वो डिफरेंट है, 2 है, और 1 की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। लेकिन हमने इन दोनों में से कोई एक असाइन करना था, ठीक है, क्योंकि हमने एल्गोरिथम में देखा था कि अगर दो आपस में मिल ना रहे हों तो हम उसके लिए कोई एक की वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेकिन जब हम कोई एक की वैल्यू असाइन कर लेंगे तो हमने साथ में नोट रखना था, और वो नोट ये है कि 1 और 2 जो हैं इस लोकेशन पर ये आपस में
मिसमैच कर रहे हैं और ये किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। हम आगे जाते हैं। जब हमने यहाँ देखा तो x और r और t की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, इस वजह से हमने इसको नया लेबल असाइन कर दिया। जब हमने नया लेबल असाइन किया और नेक्स्ट पॉइंट पे गए तो नेक्स्ट में हमने देखा कि 3 और 4 वैल्यूज़ हैं और लेबल इनके अलग अलग हैं। और हमने एल्गोरिथम में देखा था कि अगर दो अलग अलग आ रही होंगी तो हम क्या करेंगे, कोई एक असाइन कर देंगे और उसको आपस में नोट कर लेंगे कि ये जो लोकेशन थी यहाँ पर 3 और 4 जो हैं वो सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। हम सेम इसी तरह आगे चलते गए तो हमने इसको 4 असाइन कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसी तरह हमारे पास इसका जो t की वैल्यू थी वो आ रही थी, इस वजह से हमने t असाइन करते गए, आगे चले गए। अब हम नेक्स्ट जब आते हैं इस पॉइंट पे तो हमारे पास अगेन r की वैल्यू आ रही है 1, तो हम इस वजह से इसको 1 कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी 1 कर देते हैं क्योंकि r और t की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। सेम इसी तरह जब हम आगे चलते गए तो हमारे पास इसकी भी 4 वैल्यूज़ आ गई क्योंकि इनमें से किसी दो की वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने इसको 5 असाइन कर दिया क्योंकि r और t की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 आ रही हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ जो r की वैल्यू है वो 1 है और t की जो वैल्यू है वो 5 है। तो हमने एल्गोरिथम में देखा था कि कोई r या t की वैल्यू हम असाइन करते हैं, नॉर्मली हम r को ले लेते हैं, तो हमने r असाइन कर दिया और हमने इसको साथ में नोट कर लिया कि ये जो लोकेशन थी यहाँ पर 1 और 5 जो हैं वो आपस में मैच कर रहे थे और वो जो पिक्सेल्स जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। हम सेम इसी तरह हम आगे चलते गए तो ये भी सारे 4 हो गए और जब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे तो हमने इसको भी 5 कर दिया। अब हमने ये नोट बना लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट पेयर्स आ रहे थे कि जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते थे तो हमें पता चलता था कि ऊपर की जो वैल्यू है r की और जो t की वैल्यूज़ है उससे पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में एक इक्विवेलेंट पेयर बना रहे हैं। अब अगर हम इनको सेकंड राउंड में हम जाएंगे, जब हमने एल्गोरिथम के सेकंड फेज़ को देखा था कि अगर हम सेकंड फेज़ में जाएंगे तो उस सिचुएशन में हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, इस इशू को डिज़ोल्व करेंगे कि क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये जो दो इक्विवेलेंट पेयर्स आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने 1 और 2 देखा और 1 और 5 देखा तो उनमें हमारे पास इक्विवेलेंट पेयर बन रहा है 1 का, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 को हमने नोट किया था और 1 और 5 को नोट किया था लोकेशन नंबर पे। तो एक ये वाली लोकेशन थी और एक ये वाली लोकेशन थी, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने नोट किए थे और हमें ये पता चला कि ये आपस में पेयर बना रहे हैं। इस वजह से हमने उनको कोई एक वैल्यू असाइन कर दी, कोई एक लेबल असाइन कर दिया। वो लेबल क्योंकि 1 था हमारे पास स्टार्ट में ही, तो हमने 1 असाइन कर दिया उन सबको। और दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 की जो आ रही है सिचुएशन ये वाली, तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास वो पेयर बनता जा रहा है, यहाँ पर भी पेयर बनता जा रहा है। इस वजह से हमने क्या किया कि हमने इनको भी एक लेबल असाइन कर दिया और वो लेबल कोई भी हो सकता है, तो हमने 3 असाइन कर दिया क्योंकि जो हमारे पास जो टॉप पे आ रही थी वैल्यू 3 थी, इस वजह से हमने उसको 3 असाइन कर दिया। तो ये सिंपल हमारे पास प्रोसेस है कि हम कैसे लेबल असाइन करेंगे। अब हमने लेबल असाइन कर दिए तो हमें ये पता चल गया कि ये जो रीजन है ये एक है और यहाँ से जो हमारे पास ये दूसरा आ रहा है ये दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि जब हम चाहेंगे कि हम सिर्फ 1 को रीड करना चाह रहे हैं और या हम सिर्फ 3 को रीड करना चाह रहे हैं तो वो बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। आगे हम इसकी और भी डिटेल देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। हम इस पॉइंट पे आ गए कि पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्सल की डिफिनीशन एग्जैक्टली हम किस तरह कर सकते हैं कि एक पॉइंट जहाँ से हम उसकी सैम्पलिंग करें और उसकी क्वांटाइजेशन करें तो हम उस पॉइंट को एक पिक्सल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पिक्सल वैल्यू है उसकी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर तो
कोई पिक्सेल्स हैं तो वो क्योंकि 2D ग्रिड में बन जाते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है, तो उनके कुछ नाइबर्स होते हैं और वो नाइबर्स जो हैं वो कुछ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, मतलब कुछ डायगोनल होते हैं, कुछ उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि हम उसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि वो किस तरह कनेक्टेड हैं आपस में। तो कनेक्टिविटी जब हमें पता चल गया तो हम कोई जो दो रीजन्स हैं उनको एडजेसेंट चेक कर सकते हैं कि क्या वो आपस में एडजेसेंट हैं कि नहीं। तो एडजेसेंट होने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, हम उसको चेक कर सकते थे 4, 8 और मिक्स एडजेसेंट चेक करने के लिए। और फिर जब हम ये चेक करते हैं तो जाहिर है हमें उसके लिए पाथ चाहिए था, हमें उसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए थे। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो आपस में एडजेसेंट है और उसकी वैल्यूज़ जो है इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं वो भी सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक पाथ बना रहे हैं और वो आपस में एडजेसेंट है। अब उसके बाद हमने ये देखा कि हम ठीक है हम रीजन्स तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेसेंट हैं कि नहीं, लेकिन अगर हम सबको एक ही वैल्यू दे देंगे तो हम कैसे पता कराएंगे कि इस इमेज के अंदर कितने कंपोनेंट्स थे, कितने एरियाज थे, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो उस डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें उनको लेबल असाइन करने थे। तो वो लेबल हमने किस तरह करने थे? हमें एक एल्गोरिथम अप्लाई किया। एल्गोरिथम में हमने सिंपली पिक्सल बाय पिक्सल हम रीड करते गए, टॉप से बॉटम की तरफ आते गए और लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम हर एक वैल्यू को चेक करते जा रहे हैं और उसमें दो हमारे पास सिंपल स्टेप्स थे। एक ये कि हम लेबल असाइन करें और सेकंड में ये कि अगर कोई दो पेयर्स बन रहे हैं आपस में, पिक्सेल्स के पेयर्स बन रहे हैं, तो हम उनको डिसॉल्व करके एक बना लें। हम इसका मतलब ये होगा कि वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।